So, good morning, students. Today we will start chapter number 2. Chapter name is The Adventures of Toto. यानी टोटो के साहसिक कारनामे. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये जो कहानी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन एंड समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. The narrator's grandfather was fond of keeping different kind of pets. One day, he bought a monkey from a Tonga driver for ₹5. Its name was Toto. It was a mischievous small monkey. At first, his pranks were amusing. The family members enjoyed these pranks, but with the passage of time, his mischiefs became wilder. He broke many things in the house. At last, grandfather realized that he could not keep Toto at home any longer. So he sold Toto back to the Tonga driver for ₹3. Now, come to the summary part. Once there was a boy who lived along with his grandfather and grandmother. One day, the grandfather bought a monkey for ₹5 from a Tonga driver and named it Toto. Grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey but was mischievous too. Grandmother didn't like pets, so the boy and his grandfather decided that the presence of Toto must be kept a secret. Toto was tied to a peg fastened into the wall. In attempts to get free from the peg, it tore the wallpapers and curtains of that room. The next day, the grandfather had to go Saharanpur for collecting his pension. He could not risk leaving Toto at home, so he took it along with him. The ticket collector charged Toto ₹3 for being a dog. Toto stayed in the stable with Nana the donkey. Toto and Nana never became friends as they fought again and again. One day, when the lunch table was set, Toto came there and started enjoying the meal of pulao, and grandmother screamed, seeing Toto spoiling food. Toto reacted by throwing a plate at her. It made its escape from the window and climbed up the jackfruit tree along with a dish of pulao. After finishing the dish, it threw down the plate and broke it into the pieces. Finally, grandfather agreed that they could not afford and frequent loss of dishes, cloths, curtain and wallpapers, and decided to sell off Toto. It was sold back of the Tonga driver for the sum of ₹3. तो ये जो कहानी है, टोटो नाम का एक मोंकी होता है जिसे ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लाते हैं ₹5 में, और उसने घर में किस प्रकार के साहसिक कारनामे किए, किस तरह से वहाँ के लोगों को परेशान किया कि अंत में दादाजी को वो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने वापस उस मोंकी को उस टोंगा ड्राइवर वाले को ₹3 में बेच दिया. इसी को जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे. तो इस कहानी में बताया गया है, शॉर्ट रूम में बता देता हूँ मैं आपको, कि एक बार एक लड़का अपने दादा दादी के पास रहता था. एक दिन दादाजी ने एक तांगे वाले से एक बंदर ख़रीदा और उसका नाम टोटो रख लिया. दादाजी ने निश्चय किया कि इस जीव को वह अपनी निजी जंतुशाला में शामिल करेगा. टोटो एक बहुत ही सुंदर लेकिन शरारती बंदर था. दादी जी को घरेलू जो जानवर थे, पालतू जो जानवर थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं थे. इसलिए दादाजी और उस बच्चे ने तय कर लिया था कि टोटो की उपस्थिति को, यानी टोटो को जो ख़रीद के लाए थे उस ख़रीदने की जो प्रक्रिया है उसे हम गुप्त रखेंगे, गोपनीय रखेंगे. तो टोटो को दीवार की सहारे लगे हुए खूंटे से बांध दिया गया. खूंटे से मुक्त होने के प्रयास के कारण उसने कमरे की दीवारों पर जो वॉलपेपर्स लगे हुए थे, जो पर्दे लगे हुए थे कमरे में, उन सबको फाड़ दिया. अगले दिन दादाजी को पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा था, तो वह टोटो को घर पर छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकते थे, इसलिए उस टोटो को वो अपने साथ ही ले गए. रास्ते में टिकट कलेक्टर ने कुत्ता मानकर ₹3 किराए के रूप में ले लिए. टोटो अस्तबल में
अब नाना गधे के साथ रहा। टोटो और नाना में कभी मित्रता नहीं हुई क्योंकि वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन जब दोपहर में भोजन की मेज़ लगाई गई तो टोटो वहाँ आ गया और चावल पुलाव खाने का आनंद उसने लिया। दादी जी जोर से चिल्लाई जब उन्होंने टोटो को भोजन खराब करते हुए पाया। टोटो ने दादी की और प्लेट फेंककर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और खिड़की से निकलकर चावल पुलाव की एक प्लेट लेकर कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और व्यंजन समाप्त करने के बाद प्लेट को नीचे फेंककर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में दादाजी इन सब जो उसके क्रियाकलाप थे टोटो के, उनसे काफ़ी परेशान हो गए और इस बात पर राज़ी हो गए कि वह तस्तरियाँ, कपड़े, पर्दे, दीवार पर लगे सजावटी कागज़ों का नुकसान वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने टोटो को बेचने का निश्चय कर लिया और उस तांगे वाले को 3 रुपये में उसने वापस से उस टोटो को बेच दिया। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी summary part and introduction part of the chapter. The text part of the chapter we will continue in the next video. Till then, thank you very much.